Good morning, friends. So, welcome to this third lecture. Hello. 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 So, we started with preliminary topic. First topic we started with. In preliminary, we are going to revise the basics of accounting which we study in 11th commerce. In last lecture, we understood the history of the subject of accounting, from where the accounting started. It has got a long history. We went back thousands of years back, and we visited Greek culture, we visited Ramayana, Mahabharata, we visited Kautilya's period. Then we spoke about the father of double entry bookkeeping system, Fra Luca di Pacioli. And then we tried to understand what is the definition of accounting given by AICPA. The definition is given by American Institute of Certified Public Accountants, and the definition goes like this: that accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and events in a systematic manner. Recording is nothing but recording the business transactions in journal. Posting the entries from journal to ledger is nothing but classifying into real, nominal, personal accounts. Then when we draw trial balance by taking closing ledger balances, basically we are summarizing the position arising out of the business transactions for that period, summary. And then we analyze our financial performance and financial position by preparing financial statements. Interpretation part is dealt with under different branches of accounting, and that depends on who is the user of the financial statements. Users of financial statement are categorized into two different types: internal and external. Internal are those from within the organization, external are who are from outside the organization. कुछ एग्जांपल्स भी अपन ने देखे. इंटरनल में एम्प्लॉयज आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, ओनर्स आते हैं. एक्सटर्नल में गवर्नमेंट है, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस है, कॉम्पिटिटर्स है. सो दे विल बी एक्सटर्नल. अकाउंटिंग जो होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का होता है. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हमने बात की कल, जिसमें हमने सबसे पहले समझा कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाद में, पहले ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन इज एनी काइंड ऑफ गिव एंड टेक. किसी भी तरीके के लेन देन को हमने बोला कि वो ट्रांजैक्शन होता है. बट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज मेजर्ड इन मनी और मनी इज वर्थ, व्हेन इट इन्वॉल्व्स मनी और मनी इज वर्थ, देन इट बिकम्स financial transaction. As against it, what do you mean by events? Events are results of transactions or any kind of happenings in the business. कोई किसी तरीके का happening भी हो गया, loss due to fire रहेगा, loss due to theft रहेगा, anything or result of transactions, that is referred as events. So we account for financial transactions. Financial transactions are also called as commercial transactions, business transactions, जो भी नाम आप यूज करो. Such transactions which involve money or money's worth. And then events, हम इसका अकाउंटिंग करते हैं. And then अपन ने कल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किए थे. अलग अलग 5 ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको एक जनरल आइडिया दी. जो सब्जेक्ट अपन 11th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं या अभी भी सीखने वाले, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. द कोर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, द बेस ऑफ ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. विदाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाकी ब्रांचेस काम नहीं कर सकते. तो कंपल्सरीली तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कोर लेके समझना ही पड़ेगा. ये बेस है सारे अकाउंटिंग का. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड कीपिंग, जो जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड कीपिंग, जिसमें जर्नल आ गया, लेजर आ गया, सब्सिडरी बुक्स आ गए, जो भी जरूरी रिकॉर्ड्स है, ट्रायल बैलेंस आ गया, ये सब रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड अराइविंग एट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहां तक का पोर्शन कवर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. जैसे ही फाइनल अकाउंट्स बन गए,
वहां पे आके फाइनेंशियल अकाउंटिंग रुक जाएगा। अब उसके आगे अगर कुछ भी करना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, दैट विल बी डन अंडर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस डिपेंडिंग ऑन द पर्पज। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग जो सेकंड ब्रांच हमने डिस्कस की, उसमें कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज आर डेल्ट विद अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। लाइक मैंने कल आपको बताया कि प्राइमरीली अगर मैं कैटेगराइजेशन करूं तो कॉस्ट दो टाइप के, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये मैटर ही नहीं करता कि कॉस्ट कौन सा है, कॉस्ट इनकर हो गया ना, वी कंसिडर दैट एज कॉस्ट। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कितना है, इसका एनालिसिस किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ढूंढी जाती है कि ऑन एन एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगना चाहिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, और तुमको एक्चुअल में कॉस्ट कितना लगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, इवन बजटेड कॉस्ट पिक्चर में आता है। क्यों? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड कंडीशन में इनकर की जाती है। जरूरी है कि हर बार स्टैंडर्ड कंडीशंस रहेंगी ही अपने बिजनेस में। हो सकता है कि अपने पास स्टैंडर्ड कंडीशंस है नहीं। जैसे तुम टू व्हीलर अगर खरीदते हो तो टू व्हीलर पे देखो वो माइलेज का जो रहता है, वो जो माइलेज गारंटी करते हैं उसके सामने ना वो स्टार मार्क रहता है, और वो स्टार मार्क नीचे लिखा हुआ रहता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या रहते हैं कि तुम एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल से एक समझो तुम 60 के स्पीड पे कांस्टेंट गाड़ी चला रहे हो 60 के, रास्ते में कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं है, तुम ब्रेक नहीं लगाओगे, तुम कहीं रुकोगे नहीं, और तुम ऐसे अगर चलते रहोगे बराबर कांस्टेंट उस स्पीड से 1 घंटे तक, तो तुमको इतना माइलेज मिलेगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गए भाई, बट जरूरी नहीं ना मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस रहे। तो अपने बिजनेस के लिए बजटेड कॉस्ट कितना है वो हम देखते हैं। एक तरफ है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक तरफ है बजटेड कॉस्ट, और एक तरफ है एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, बजटेड जितना उतना होगा ऐसे भी जरूरी नहीं। ठीक है, मेरे पास लेबर ये रेट्स अवेलेबल होता है जिसको मैं वेजेस पे करता हूं। अरे बट उस दिन जब मेरा काम था उस दिन हो सकता है कि लेबर था ही नहीं, तो मुझे बाहर का लेबर लाना पड़ा और एडिशनल पेमेंट करना पड़ा। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, इनका जो भी कंपैरिजन होता है उसमें जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस का क्या करना है, ये एनालिसिस हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी नहीं करते। अपन क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट कितना है, इतना, चलो ले लो P&L में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत क्लियर है, बट उसके आगे का जो फर्दर इंटरप्रिटेशन और आगे का जो एनालिसिस सब करना है, ये कहां होगा, कॉस्ट रिलेटेड है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी कवर्ड अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मुझे एडिशनल 10 लाख रुपए, मैं जैसे कल एग्जांपल दे रहा था आपको लास्ट लेक्चर में कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब वो 10 लाख रुपए कहां से आएंगे, या तो मैंने एडिशनल कैपिटल लाना या लोन लेना। अब लोन भी लेना है तो बैंक से लेना है या किसी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से लेना। ये डिसीजन मेकिंग जो है, रीपेमेंट कैसे होगा, आगे जाके कैश फ्लो कैसे आएगा मेरे पास बिजनेस में, क्या मेरे प्रोजेक्शंस है, ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती, ये सारी चीजें होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये पहले 3 ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 ब्रांचेस को बोलते हैं कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। एंड उसके आगे जो मैंने 2 डिस्कस किए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया क्लियरली, आई एम श्योर कि आपके दिमाग में भी अभी फिक्स वो हो गया। कॉन्क्रीट आज सच कुछ नहीं है उसमें कि भाई ये फॉर्मेट में ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग करना है, इस तरीके से इसका ये डिटेल देना है, ऐसा कॉन्क्रीट कुछ नहीं है, कहीं कोई लिखित में है नहीं, कोई लॉ उसके ऊपर बना नहीं है, कुछ नहीं है। स्टडीज आर गोइंग ऑन, डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, व्हाट इज टू बी डन अंडर दैट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये इन टोटल 5 अलग अलग ब्रांचेस के बारे में हमने कल बात की थी। तो ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट किया। आज अपन एंटर हो रहे प्राइमरी रिकॉर्ड्स में। व्हाट आर द प्राइमरी रिकॉर्ड्स विच आर मेंटेन्ड अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, वो प्राइमरी रिकॉर्ड समझने के लिए यू नीड टू डिवाइड द ट्रांजैक्शंस इनटू 2 कैटेगरीज, कैश ट्रांजैक्शंस एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। सो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए क्या रिकॉर्ड्स है, नॉन कैश के लिए क्या है, दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, दैट वी विल बी स्टडिंग नाउ। अभी अपन पूरा डिटेल में चार्ट बनाने वाले, एक एक चीज पूरी डिटेल में समझने वाले, बट एक जनरल कल वैसे बता ही दिया था मैंने लेक्चर एंड होते होते, बट फिर से एक बार, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, मैं वापस बोल रहा हूं, कैश रहो नॉन कैश रहो, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। बच्चे कई बार मिस इंटरप्रिट कर लेते कि नॉन कैश बोल तो सर फिर वो फाइनेंशियल थोड़ी हुआ, फाइनेंशियली रहता हो। ओनली थिंग इज कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आइदर देयर इज कैश रिसीट और कैश पेमेंट। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश रिसीट या कैश पेमेंट इन्वॉल्व है वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर
दोस ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कैश ट्रांजैक्शन, जिनमें कैश रिसीट या कैश पेमेंट नहीं है, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है. कैश ट्रांजैक्शंस के लिए वी हैव कैश बुक, वी मेंटेन कैश बुक, कैश बुक मेंटेन होता है. एंड कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है. एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, 11th स्टैंडर्ड में अपने को अकाउंट सिखाते वक्त सारे ट्रांजैक्शंस के अपन ने जर्नल एंट्रीज किए हुए, वो जर्नल के फॉर्मेट में. वो सिर्फ अपने को डेबिट क्रेडिट के अंडरस्टैंडिंग के लिए उस तरीके से अपन ने सीखा हुआ है बेटा. एक्चुअल में जो है ना, अभी जो मैं बता रहा हूं आपको, उस तरीके से ही रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. तो अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन जर्नल में कभी नहीं जाता, क्यों? तो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हारे पास कैश बुक है. तो डायरेक्टली कैश ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है, जो एंट्री होती है, वो कहां होती है? कैश बुक में होती है. और नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग जर्नल्स है. तो ये अलग अलग जर्नल्स कौन से, कैश बुक क्या रहता है, कैश बुक में कौन से टाइप्स है, ये सब अपने को समझना है. कितने टाइप के कैश बुक सीखे तुमने? दो. कौन से? सिंगल एंड डबल. मल्टी कॉलम नहीं सीखा है? सीखा ना? पेटी कैश बुक नहीं सीखा? मैं बोले बोल रहा हूं, हाँ ये भी सीखा, ये भी सीखा. चार टाइप के कैश बुक सीखे हुए तुमने. सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, मल्टी कॉलम 3 कॉलम और मल्टी कॉलम कैश बुक, एंड पेटी कैश बुक. तो ये चार टाइप के कैश बुक अपने को सीखने हैं. नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो उसमें जर्नल्स आते अलग अलग. अब जर्नल्स में सब्सिडरी बुक्स बोल के सीखा हुआ है तुमने. 4 सब्सिडरी बुक्स सीखे है 11th में. परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेस रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, जिसको तुम रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड भी बोलते. अभी अपन और 2 जर्नल इसमें ऐड करने वाले, बिल्स रिसीवेबल जर्नल एंड बिल्स पेएबल जर्नल, एंड अलॉन्ग विद दैट जर्नल प्रॉपर तो है ही. सो इन टोटल 7 जर्नल्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. 7: परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल जर्नल, बिल्स पेएबल जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर. तो ये 7 जर्नल, 4 टाइप के कैश बुक और ये 7 अलग अलग जर्नल्स, ये सब अपने को सीखना है. ऑल एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रिवाइज हियर. अपन लिखेंगे भी हर चीज को, ठीक है? यस. लिखो, हेडिंग लिखो. Primary records for financial transactions. Cash transactions, non-cash transactions.
For cash transactions, the record maintained is cash book. कैश बुक में फिर सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, थ्री ऑब्लिक मल्टी कॉलम कैश बुक, or even there might be petty cash book. पेटी कैश बुक भी हो सकता है. So single column, double column, three or multi column cash book, petty cash book. For non-cash transactions, we maintain various journals. जर्नल्स में परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, बिल्स रिसीवेबल जर्नल, बिल्स पेएबल जर्नल, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर. क्या लिखा सर उसके आगे आपने ब्रैकेट में? अपना घर. क्यों? बताता हूं क्यों लिखा अपना घर. Why I am calling journal proper as अपना घर. So these are the primary records which are maintained for financial transactions. We divided financial transactions in two parts. First, cash transactions and non-cash. Under cash transactions we have cash book. Under non-cash transactions we have various journals. So let's first focus on cash transactions. पहले cash transactions पे focus करते हैं. As I said, cash transactions don't take literal meaning only hard cash transactions. Cash transactions involve bank transactions also. मतलब चेक से भी पेमेंट किया तो भी कैश पेमेंट ही माना जाता है. चेक से रिसीट भी आया तो वो कैश रिसीट ही माना जाता है.
तो यहां पे जब मैं कैश ट्रांजेक्शन्स बोलता हूं तो कैश ट्रांजेक्शन्स आर दोस ट्रांजेक्शन्स विच इन्वॉल्व कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड कैश एंड बैंक पेमेंट्स। तो दोज आर कैश ट्रांजेक्शन्स, और ये कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में। और कैश बुक जो है वो 4 टाइप के, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 और मल्टी कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। राइट डाउन हेडिंग, अगला हेडिंग लिखो, रिकॉर्ड्स फॉर कैश ट्रांजेक्शंस। किसको? कॉम्पिटिटर्स को पब्लिश किए जाते हैं ना अकाउंट्स। कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है, तुमको आरओसी में सबमिट करना पड़ता है। कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को उनके अकाउंट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो लिस्टेड है उनको तो डायरेक्टली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में। एंड जो बाकी भी प्राइवेट लिमिटेड, जैसे एक्सपर्ट है, समझो एक्सपर्ट का बैलेंस शीट आरओसी में सबमिट होता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के वेबसाइट पे जाओगे तो कोई भी 100 रुपए दे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकता है। यस, सो दोज आर पब्लिश्ड अकाउंट्स, तो कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं। हाँ, प्रोप्राइटरी कंसर्न पार्टनरशिप फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं किया जाता, बट बड़े स्केल पे अगर कंपनीज की बात करेंगे तो कंपनीज में तो पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं। हाँ, रिकॉर्ड्स फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, हेडिंग लिखे ना, रिकॉर्ड्स फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। Cash transactions are, under that write down, cash transactions are transactions involving cash oblique bank receipt, cash oblique bank receipt, or cash oblique bank payments, or cash oblique bank payments. To record these transactions, following formats are used. Following formats are used. Number 1, single column cash book. Single column cash book. Features. Features. Number 1. Number 1.
एक बार लिख लो सारे, फिर समझाता हूं। नंबर 1, फीचर्स में नंबर 1, दिस कैश बुक इज यूज्ड, this cash book is used by small businesses, by small businesses where there are no bank transactions, where there are no bank transactions. Number 2, it has two sides to record the cash transactions with single amount column. Single amount column. Full stop. Number 3, the left hand side is referred as receipt side, and the right hand side as payment side, and right hand side as payment side. Full stop. Serial number 4, the recording mechanism in cash book is summarized as under. नेक्स्ट लाइन लिखो, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस. Opening balance plus receipts minus payments is equal to closing balance. लिखा. अब आप एक चीज समझ के लो बेटा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है.
रादर जो सब्जेक्ट अपन समझ रहे सीख रहे हैं ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये तो लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है ये। अभी मैं कैश बुक का रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म आपको लिखा के दिया, ऐसा कौन सा क्या बहुत भारी चीज मैंने तुमको लिखा के दी, या क्या है ऐसा इसमें, ये तो कोई भी बता देगा। ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स विल बी क्लोजिंग बैलेंस। मेरे जेब में आज सवेरे घर से निकलते और 100 रुपए थे, 100 रुपीज। मुझे दिन भर में लेट से 500 रुपए की रिसीट हुई, पहले से 100 थे, 500 रुपए मिले मेरे को, रिसीट हुई मेरी 500 रुपए की, टोटल 600 हो गए। और मैंने दिन भर में 400 रुपए का पेमेंट किया, आई मेड अ पेमेंट ऑफ 400, तो मेरे पास कितने बच गए, 200। अब ये क्या ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस है क्या, चंद्रयान छोड़ना है, किधर किधर आग लगाए, कितने टेम्परेचर पे लगाए, कितने डिग्री पे उड़ाए, बहुत सिंपल है कि भाई ओपनिंग बैलेंस जो भी है उसमें मेरे रिसीट्स ऐड करो, उसमें से मेरे पेमेंट्स लेस करो, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। सो दैट इज व्हाट द रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म इन कैश बुक इज। कैश बुक में आप और क्या करते, चलो साइंस वाले अभी पहली बार सीख रहे, बट कॉमर्स वालों को तो क्या क्या अलग किया था आपने। कैश बुक में रिसीट में ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर रिसीट्स सारे उसमें ऐड हुए, उसमें से फिर पेमेंट्स ऐड किए, पेमेंट्स लेस किए, क्लोजिंग बैलेंस बचा, ये तो किए ना। सो द रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म ऑफ कैश बुक इज ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। सीरियल नंबर 5। Since the cash can never be negative, since the cash can never be negative, comma, the single column cash book, the single column cash book will always show positive that is debit balance only, that is debit balance only। लिखा, कैश निगेटिव हो ही नहीं सकता ना, हाउ कैश विल बी निगेटिव। मेरे जेब में अगर 100 रुपए है तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना पेमेंट कर सकता, 100 रुपए, मैं 110 का पेमेंट कैसे करूंगा, कैश में बोल रहा हूं मैं, कैश, मैं बैंक की बात ही नहीं कर रहा हूं। बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है तो वहां पे निगेटिव हो सकता है, मैं यहां पे अपन कैश की बात कर रहे हैं। कैश हाउ इट कैन बी निगेटिव, वेरी सिंपल एग्जांपल कि आई हैव 100 रुपीज विथ मी, मैक्सिमम पेमेंट आई कैन मेक इज 100, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कैश बैलेंस 0 हो जाएगा, निगेटिव कैसे होगा। मैं बोल सकता कि मेरे जेब में 100 रुपए थे, मैंने 150 रुपए पे किए, कैसे पे करूंगा 150 रुपए जब मेरे जेब में 100 रुपए है तो। सो कैश कैन नेवर बी नेगेटिव। कमिंग टू द सिंगल कॉलम कैश बुक, पहला ही पॉइंट मैंने लिखा के दिया दैट दिस फॉर्मेट इज यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस वेयर देयर आर नो बैंक ट्रांजैक्शन, जहां पे बैंक अकाउंट है ही नहीं, जहां पे बैंक ट्रांजैक्शन होते ही नहीं है, और प्योरली हार्ड कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। हार्ड कैश बोलते हो रोकड़ा, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, तो जहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन है वहां पे ये फॉर्मेट यूज होता है। रियली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बेटा आज की डेट में तो ऐसे बिजनेस मिलना भी मुश्किल है, और जहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन हो रहे, इतना छोटा बिजनेस है वो कैश बुक मेंटेन भी नहीं करेगा, इतने छोटे बिजनेसेस कैश बुक मेंटेन कहां करेंगे, और ऑलमोस्ट हर बिजनेस में आज बैंक अकाउंट तो है ही। So it is very difficult to find now this format which is being practically followed, but obviously format है तो अपने को तो हिस्ट्री समझनी है पूरी, क्या क्या फॉर्मेट्स थे वो भी समझना है। तो एक टाइम था जब बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप हुआ नहीं था, बैंकिंग सेक्टर इतना डेवलप हुआ नहीं था, और सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शंस होते थे, ऐसे भी बिजनेस थे ना छोटे छोटे गाँव में। तो जब वहां पे फिर कैश बुक मेंटेन होता था तो सिंगल कॉलम होता था, क्यों, तो वहां पे फिर बैंक के लिए कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो ओनली वन अमाउंट कॉलम यूज्ड टू बी देयर इन दैट कैश बुक। तो वही लिखा के दिया है सेकंड पॉइंट में, दैट
this it has two sides with identical columns on both the sides and only one amount column on each side. दोनों साइड में सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम रहेगा कि तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करने वाले हो तुम बैंक तो है ही नहीं तुम्हारा, तो बैंक ट्रांजैक्शन होंगे ही नहीं, तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक ही कॉलम अमाउंट का बनता है, उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। अब ये जो कैश बुक है इसके दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों साइड्स में आइडेंटिकल कॉलम्स है, जो कॉलम्स राइट लेफ्ट हैंड साइड में वही कॉलम्स राइट हैंड साइड में है। क्या है कैसे है साइंस बच्चों के लिए अभी मैं बनाऊंगा फॉर्मेट। तो दोनों साइड्स आइडेंटिकल कॉलम्स के साथ है। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज रिसीट साइड वेर इन वी रिकॉर्ड रिसीट्स, एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज पेमेंट साइड वेर इन वी रिकॉर्ड पेमेंट्स। सो टू साइड्स। अगला पॉइंट जो लिखा के दिया ऑलरेडी समझा चुका हूं कि रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म क्या है, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, इट विल गिव यू क्लोजिंग बैलेंस। एंड ये सब करते वक्त ध्यान रहे कि बिकॉज इट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाले, कैश कैन नेवर बी निगेटिव, कैश बैलेंस जीरो के नीचे जा ही नहीं सकता, निगेटिव हो ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है। एंड देयरफॉर कैश बुक विथ सिंगल कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक विल नेवर शो नेगेटिव और क्रेडिट बैलेंस, इट विल ऑलवेज शो पॉजिटिव, दैट इज डेबिट बैलेंस। सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस ही दिखेगा उसमें, नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखेगा। सीरियल नंबर नेक्स्ट, द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक is as under. The format of single column cash book is as under. चलो गाइस लाइन मारने का टाइम आ गया। डेट, रिसीट्स, रिसीट्स की जगह तुम पर्टिकुलर्स भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एलएफ अमाउंट रुपीज, डेट पेमेंट्स एलएफ अमाउंट रुपीज।
जैसे मैंने बोला कि कैश कैन नेवर बी निगेटिव, कैश अगर निगेटिव हो ही नहीं सकता तो कंपल्सरीली उसमें ओपनिंग बैलेंस जो है वो पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा. सो टू ओपनिंग बैलेंस जो भी अमाउंट है वो यहां पे लिखी जाएगी अमाउंट कॉलम में. देन विच एवर कैश रिसीट्स यू विल हैव, वो कैश रिसीट्स रिसीट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे. जो भी कैश रिसीट्स है वो रिसीट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे. जो भी पेमेंट्स है वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होंगे बाय कैश पेमेंट्स. अब क्या होता है, जब भी कभी हम कैश बुक क्लोज करेंगे नॉर्मली, जब अब चलो कंप्यूटराइज में तो ये इशू ही नहीं आता, बट जब मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हुआ करता था, मैन्युअली अकाउंट्स मेंटेन होते थे, तब तो बेटा कैश बुक जो है वो तो कंपल्सरीली डेली बेसिस पे ही क्लोज होता था. रोज का रोज टैली करते थे कि कैश कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है. अगर आप बिजनेस फैमिली से हो तो आपके घर में भी आपने देखा रहेगा, आपके दादाजी को वगैरह काम करते हो कि दादाजी लोग जब तक अपना रोज का हिसाब टैली नहीं होता है, कैश टैली नहीं होती, तब तक शॉप बंद भी नहीं करते थे. तो नॉर्मली इट इज डन ऑन डेली बेसिस. अब कैश बुक क्लोज करना बोल तो क्या, तो डेबिट साइड का टोटल लिया जाता है, क्यों तो डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, क्यों तो कैश कैन नेवर बी नेगेटिव. तो ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स टेक द टोटल वॉट एवर इट इज, जो भी टोटल रहेगा वो आएगा. उसमें से पेमेंट साइड के पेमेंट्स लेस करेंगे अपन, एंड देन वी विल गेट क्लोजिंग बैलेंस. एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर. जब अपन बैलेंसिंग फिगर लेते किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी अकाउंट में, तो वी पुट एस्ट्रिस मार्क सो दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन दैट दिस इज बैलेंसिंग फिगर. तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी लिखो मत, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो, डोंट राइट. मैंने जैसे बोला कि मेरे पास सवेरे आज 100 रुपए थे, फिर मेरी रिसीट हुई 500 रुपए की, तो 100 रुपए ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा, 500 रुपए का रिसीट रिकॉर्ड किया, फिर टोटल मेरे पास हो गए 600. अब मैंने पेमेंट किया 400 का, तो 400 पेमेंट साइड में रिकॉर्ड हो गए, तो अब कितने बच गए, 200 बच गए. होता है, इट्स वेरी सिंपल. सो ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स विल गिव यू क्लोजिंग बैलेंस. अब कॉलम्स में बाकी तो समझ में आ जाता है. साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आप लोग समझो बेटा, ये LF क्या है, व्हाट इज LF, LF का मतलब क्या है एग्जैक्टली. सो LF इज लेजर फोलियो, उसको बोलते हैं लेजर फोलियो. क्या रहता है लेजर फोलियो बोल तो, जर्नल से पोस्टिंग जो है, एंट्री जो है ये ट्रांजैक्शन की, वो लेजर में पोस्ट की जाती है. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में अब ये इररिलेवेंट हो गया जो अभी मैं बता रहा हूं वो, बट जब मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग थी, तो मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था. मैनुअल में क्या रहता था, जर्नल की एक बुक रहती थी अलग, लेजर का अलग बुक मेंटेन होता था. आपने अगर पुराने जमाने के मूवीज देखे, या घर में भी आपके आज भी दादाजी वगैरह है, तो वो रेड कलर की बुक्स देखे रहेंगे तुमने, बही खाता जो बोलते, अपन दिवाली में पूजा भी करते उसकी, बराबर है. तो उसमें ना क्या रहता ना, एक जर्नल मेंटेन होता था, जर्नल्स, एक रहता था लेजर. अभी जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वो लेजर में भी जाता है ना, तो जर्नल में ये रेफरेंस दिया जाता है कि लेजर के कौन से पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन गया हुआ है, तो उसको बोलते लेजर फोलियो. तो लेजर फोलियो बोल तो लेजर में जिस पेज पे एंट्री हुई है उस पेज का रेफरेंस यहां देते थे. समझो लेजर के 11 नंबर के पेज पे लिखा गया है, तो यहां पे लिखते थे 11. अब ऑब्वियसली जैसे जर्नल में लेजर फोलियो रहेगा, वैसे लेजर में जर्नल फोलियो रहेगा, कि वहां पे ये बताएंगे कि जर्नल में ये एंट्री कहां है. तो अपने जो फोर फादर्स थे, अपने जो पहले के जनरेशन थे बेटा, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, बट वो लोग अपने से ज्यादा स्मार्ट थे.
काम करने में। आज तो अपने पास सब कुछ कंप्यूटर है, इतने सारे रिसोर्सेस है, आज के जमाने में वैसे काम करना बहुत आसान हो गया है, सिवाय कंपटीशन के। पहले इतनी कंपटीशन नहीं थी जितनी आज है, बट अदरवाइज रिसोर्सेज भी तो नहीं थे ना उन लोगों के पास, कैलसी भी नहीं हुआ करता था यार, वो तो मैन्युअली सब करते थे। कितने लोगों को टेबल्स याद है स्कूल के, कहां तक के? दो, नसीब दो तो भी बोला, मैं बोला अभी एक का बोलता गया कि एक का टेबल आता मेरे को। पुराने लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे गाइज। माय मदर, मम्मी मेरे को जहां तक याद आता है वो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े थे, ओनली टिल 4th स्टैंडर्ड स्कूल गए थे। बट वो ना टेबल्स जो थे ऐसे बाय हार्ट थे उनको, और ऐसे कैलकुलेशंस तो वो ओरलीज करते थे। 4th के आगे वो कभी स्कूल भी नहीं गए। और अब तुमको ये मैं जो बताने जा रहा हूं ये तो आई एम श्योर कि आप में से किसी को भी नहीं मालूम रहेगा। अपने को टेबल्स कैसे मालूम है? पूरे नंबर्स के ना, 1 2 3 4 ये टेबल्स आते हैं ना अपने को। मराठी में ना पाव की, दीड़ की, पाउन की, फ्रैक्शंस के टेबल। सो शी यूज्ड टू ओरली से ऑल दोस टेबल्स, फ्रैक्शंस के टेबल बोलती थी वो। पाव की, दीड़ की, पाउन की, क्या क्या बोलती थी, मेरे को झेपता ही नहीं था वो। और कैलकुलेशन तो इतने परफेक्ट है ना, ओरली फटाफट कैलकुलेशन माइंड में होते थे। बोलने का मतलब यह है कि पहले की जनरेशन के पास रिसोर्सेस नहीं थे, तो जितना था उसमें भी उन्होंने बहुत परफेक्ट सिस्टम डेवलप किए हुए हैं। क्या होता था देखो, आज ना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का मिसमैच वैसे होना नहीं, क्यों तो सॉफ्टवेयर एंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करता जब तक डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट मैच नहीं होता। पहले के जमाने में जब मैनुअल था तो हो सकता था कि डेबिट का इफेक्ट 5,000 का दिया है, क्रेडिट का 500 का दिया है। अब ये हो गया, ध्यान में नहीं आता था ये गलती हुई है, और फिर सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, सब हो गया। फाइनली जाके ट्रायल बैलेंस बनाया, साल के एंड में ट्रायल बैलेंस में आया डिफरेंस। अब ढूंढो डिफरेंस, अब ढूंढो डिफरेंस बोल तो पूरे साल के ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ते थे कि डिफरेंस क्यों आ रहा, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी ना उसके बगैर। उस टाइम पे फिर ये फोलियो नंबर जो रहते थे ना वो काम आते थे कि भाई जर्नल में एंट्री जो हुई है उसका लेजर में इफेक्ट जो गया है वो कौन से पेज पे गया है, फिर वो पेज पे जाके देखो कि सेम अमाउंट का इफेक्ट गया है कि नहीं गया है। सेम क्रॉस चेक करने के लिए फिर लेजर में जो एंट्री हुई है वो जर्नल में बराबर हुई है क्या चेक करना है, तो फिर वहां पे जर्नल फोलियो लिखा जाता था। तो पेज नंबर्स के रेफरेंसेस है JF LF। फ्रैंकली स्पीकिंग अपने लिए तो यूजलेस कॉलम्स है, 11 से आज तक आपने कभी यूज किए इनको सिवाय वो कॉन्ट्रा एंट्री का C लिखने के, अदरवाइज कभी यूज किया क्या? नहीं। अभी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में तो जरूरत ही नहीं है रे, कंप्यूटर्स में तो ये कोई बात ही नहीं आती। बट ओरिजिनली जो फॉर्मेट डेवलप हुए हैं वो क्यों थे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो व्हाट इज LF? लेजर फोलियो, मतलब पेज नंबर ऑफ लेजर, लेजर का पेज नंबर जिसपे ये ट्रांजेक्शन जाके रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज लेजर फोलियो। तो ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स, पेमेंट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश कैन नेवर बी नेगेटिव एंड देयरफॉर दिस विल ऑलवेज शो पॉजिटिव बैलेंस। इसमें पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा। सिंपल मैंने आपको बताया, मेरी जेब में 100 रुपए, मैं 150 रुपए पे नहीं कर सकता, मैं 101 भी नहीं दे सकता। मेरे पास अगर 100 रुपए तो ज्यादा से ज्यादा मैं 100 रुपए का पेमेंट कर सकता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कैश बैलेंस 0 आएगा। निगेटिव नहीं हो सकता कैश बैलेंस कभी भी। और इतना स्ट्रेस देके बार बार क्यों समझा रहा हूं कि कैश कैन नेवर बी नेगेटिव, कैश कैन नेवर बी नेगेटिव। अभी जब अपन अगले फॉर्मेट में जाएंगे तो बैंक भी आएगा, बैंक बैलेंस कैन बी नेगेटिव, बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, इसलिए समझा रहा हूं कि कैश कैन नेवर बी नेगेटिव। और एक क्वेश्चन जो पहली बार सीखते उनको आता है कि सर इसको हेडिंग आपने दी सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम थोड़ी, इतने सारे कॉलम बनाए आपने, तो कितने कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है सर, फिर इसको सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोल रहे हैं आप? अमाउंट का कॉलम एक ही है ना। अब आप बोलोगे सर अमाउंट के भी तो 2 कॉलम है, 2 नहीं है, हर एक साइड पे एक एक ही अमाउंट का कॉलम है। जो रिसीट साइड का है वो एक ही अमाउंट कॉलम है, जो दूसरा अमाउंट कॉलम है वो पेमेंट साइड का है। तो जहां पे अमाउंट का हर साइड पे एक कॉलम बन रहा है उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। और कॉमर्स वालों को अगर ये समझने की अभी जरूरत पड़ रही, तुरंत खिड़की खोलो, डायरेक्ट कूद जाओ नीचे। हिम्मत नहीं हो रही तो मैं हूं धक्का देने के लिए। कॉमर्स वाले हैं, साइंस वालों के लिए तो सब कुछ नया है तो उनका ठीक है, मैं समझ सकता हूं। बट कॉमर्स वाले अगर बोलेंगे कि सिंगल कॉलम कैसे 8 कॉलम आ गए, यहां से भी नको अपन सिंहगढ़ जाते, वहां से धक्का देता, वो ज्यादा बेटर है।
इतने यहां से कुछ नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? सिंगल कॉलम समझा? लिखो नंबर 2। ये हो गया ना? ये बनाया कि नहीं आपने? फॉर्मेट, फॉर्मेट बना दिया ना? अब लिखो नंबर 2। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। फीचर्स, फीचर्स नंबर 1, फीचर्स नंबर 1, it has it has two amount columns. It has two amount columns on each side, on each side to record cash and bank transactions separately, to record cash and bank transactions separately. Full stop. Number 2, since there are two amount columns, since there are two amount columns, comma, the closing cash, the closing cash and closing bank and closing bank balances can be ascertained, balances can be ascertained separately. Serial number 3. As the cash can never be negative, as the cash can never be negative, comma, the cash column will always show debit balance, will always show debit balance, whereas as the bank balance
can be overdrawn, can be overdrawn, comma, the bank column, the bank column might show either debit or credit balance. Or credit balance. कैश निगेटिव नहीं हो सकता बट बैंक बैलेंस निगेटिव हो सकता है. बैंक बैलेंस निगेटिव बोल तो क्या, ओवरड्राफ्ट. बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, ये सबको मालूम है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या रहता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलता है कि तुम्हारा जितना बैलेंस है उससे ज्यादा अमाउंट तुम विड्रॉ कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. Yes, so कैश कैन बी पॉजिटिव ओनली, कैश नेगेटिव हो ही नहीं सकता. बट अगर बैंक की बात करें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है. तो यू आर अलाउड टू ओवरड्रॉ योर बैलेंस. बोल तो मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा पेमेंट मैं वहां से कर सकता हूं, उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं. तो वहां पे निगेटिव बैलेंस भी आ सकता है. अब मेरे अकाउंट में था बैलेंस समझो 5,000 रुपए का, मैंने अगर 6,000 रुपए का पेमेंट कर दिया तो 1,000 रुपए निगेटिव में चला जाएगा ना अकाउंट. सो वहां पे डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है. अभी जो लिखा के दिया है ना उसका गलत मीनिंग मत निकालो. इसका मतलब बैंक में हमेशा निगेटिव ही आएगा क्या? अगर ओवरड्रॉ किया तो निगेटिव आता है, अदरवाइज पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस ही रहेगा. बट अगर ओवरड्रॉ किया है तो निगेटिव हो सकता है. सो इट माइट शो क्रेडिट बैलेंस, इट माइट शो क्रेडिट बैलेंस. सीरियल नंबर 4. The format of double column cash book, the format of double column cash book is as under. Date column, dates are very important in life, huh? Correct na? Which dates? एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की लास्ट ड्यू डेट.
इसलिए डेट कॉलम हर फॉर्मेट में आता है. डेट, receipts, LF, cash, rupees, and bank, rupees. Date, payments, LF, cash, rupees, bank, rupees. To opening balance. कैश में तो बेटा पॉजिटिव बैलेंस ही रहेगा. बैंक में दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो अपन लिखते हो दोनों तरफ लिखेंगे. बैंक कॉलम में निगेटिव अगर निगेटिव है तो क्रेडिट साइड में आएगा ना ओपनिंग बैलेंस, अगर ओवरड्राफ्ट है तो. कैश में तो डैश ही देना पड़ेगा, क्या तो कैश में निगेटिव नहीं हो सकता, बैंक में हो सकता है. Cash receipts. Cash receipts will be recorded in cash column. Cash receipts will be recorded in cash column. बैंक या चेक के रिसीट्स है तो बैंक कॉलम. सो टू बैंक और चेक रिसीट्स we will be recording it in bank column. Similar way, by cash payments, cash column. By bank oblique check payments, bank column. By closing balance, by
क्लोजिंग बैलेंस, कैश में तो चॉइस ही नहीं है, कैश में तो कंपल्सरीली पॉजिटिव बैलेंस ही आना है। एस्ट्रिस मार्क देना भूलना नहीं, क्यों तो ये बैलेंसिंग फिगर लेते हैं अपन। स्टार मार्क का मतलब, एस्ट्रिस मार्क का मतलब बैलेंसिंग फिगर। सो कैश में तो कंपल्सरीली क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ही आने वाला है, पॉजिटिव बैलेंस ही आने वाला है। बैंक में दोनों पॉसिबिलिटीज है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो बैंक के केस में तो मैं डेबिट में भी लिखूंगा टू क्लोजिंग बैलेंस कैश कॉलम डैश बैंक, देयर मे बी बैलेंस। तो शायद अब तुमको ध्यान में आ जाएगा, जो पहली बार सीख रहे हैं, कि डबल कॉलम कैश बुक क्यों बोल रहे हैं इसको। अब देखोगे कि अमाउंट के दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम है कैश के लिए, एक कॉलम है बैंक के लिए। तो जो कैश का कॉलम है वो कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, बैंक का कॉलम है वो बैंक के कॉलम, बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, बैंक का कॉलम। तो दोनों साइड पे कैश के लिए और बैंक के लिए सेपरेट कॉलम है, इसलिए इसको बोलते टू कॉलम कैश बुक। बेनिफिट ऑफ दिस फॉर्मेट इज यू गेट टू नो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस सेपरेटली। कैश एंड बैंक के सेपरेट बैलेंसेस तुमको मिल जाएंगे, कि तो दो अलग अलग कॉलम है। कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होता है, बैंक हुआ तो बैंक कॉलम में ही रिकॉर्ड होता है। तो क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हैं तुम्हारे पास, कैश में कितना पैसा है, बैंक में कितना है, वो तुमको देखते ही समझ में आ जाएगा। सो दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। ये फॉर्मेट के नीचे एक नोट लिखना है अपने को, लिखो नोट, नोट। If there are multiple, if there are multiple, that is two or more, that is two or more bank accounts, two or more bank accounts, then separate amount columns, separate amount columns will be maintained for each bank account, for each bank account। क्या लिखा, समझा? हो सकता है ना मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, जरूरी थोड़ी है कि एक ही बैंक अकाउंट रहेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल से, इफ सपोज यू हैव अकाउंट इन HDFC ऑल्सो एंड SBI ऑल्सो, स्टेट बैंक में भी अकाउंट है तुम्हारा, HDFC में भी है, या समझो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी अकाउंट है, तीन अकाउंट है तुम्हारे, स्टेट बैंक में है, HDFC में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी है। अब तीन अकाउंट हो गए ना। अभी तुम एक ही बैंक का कॉलम बना के चलेगा क्या? क्यों, तो ट्रांजैक्शन तीन बैंक के अलग अलग ही मेंटेन करने पड़ेंगे ना। तो अमाउंट के कॉलम जब बनेंगे तो एक तो कैश का कॉलम रहेगा, वो तो रहना ही है कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। जब हम बैंक के कॉलम्स बनाते हैं तो फिर क्या होगा, बैंक रुपीज एंड अंडर दैट देन SBI, HDFC, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे जितने अकाउंट्स है उतने कॉलम अमाउंट के बनेंगे। फिर अभी आप इसको क्या 4 कॉलम कैश बुक बोलेंगे क्या? ये है 2 कॉलम ही, कैश एंड बैंक। अब बैंक मल्टीपल अकाउंट है इसलिए हमने अलग अलग कॉलम बनाए। सो स्टिल इट इज कॉल्ड एज डबल कॉलम ओनली। जाते डोक्यात? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? एनी डाउट?
यस। अब हेडिंग लिखो इसके बाद, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है क्या हो गया सर को अचानक, सर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में कहा जा रहे, कैश बुक सिखाते सिखाते ये सिखाए बगैर मैं अगले कैश बुक में जा नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है, 3 कॉलम कैश बुक अगर समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा, तभी 3 कॉलम कैश बुक समझ में आएगा। बिजनेस में जो डिस्काउंट्स होते हैं ना, वो 2 टाइप के डिस्काउंट्स हो सकते हैं, या तो ट्रेड डिस्काउंट है या तो कैश डिस्काउंट है। क्या क्या रहता है ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या रहता है कैश डिस्काउंट? कॉमर्स के स्टूडेंट्स बोलो, कहीं ऐसा ना होने तो बचा हुआ लेक्चर में सिर्फ साइंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और आप सबको बाहर निकाल दूं। क्या 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 क्या? हाँ, तो वो क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है। और ट्रेड डिस्काउंट रहता है, वो डिस्काउंट रहता है। हाँ, तो वो क्या होता है? नहीं, कौन सा होता है वो डिस्काउंट? बराबर है, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। हाँ, वो पहले का देख के नहीं पढ़ने का, तेरे पास नोटबुक कंप्लीट है इसलिए, और नोटबुक तो सामने है ना अभी। अरे बोलना। मैं वही सोचा, बायर सेलर को डिस्काउंट दे रहा, पैसा भारी काम हो जाएगा ना। वाह वाह, मजे यार। हाँ, रुक रे। हाँ हाँ, बोलने देना रे ढोकड़ा। हाँ, trade discount is discount offered by seller to buyer for bulk quantity purchased, फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बल्क क्वांटिटी। यूजुअली ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, बल्क क्वांटिटी जब अपन परचेस करते हैं तो उसके ऊपर अपने को ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ऐसे होता है ना, देखो कई बार कि कोई भी चीज तुम खरीदने जाओ, समझो इकट्ठा तुम 2-3 लोग गए और तुमने मोबाइल लेने का डिसाइड किया कि सेम मोबाइल तुमको लेना है। तुम जाके इंक्वायरी किए एक मोबाइल का वैल्यू कितना है, तुम सामने वाले डीलर को बोलते हो कि कितने में देगा। उसने समझो तुमको बोला कि ये मोबाइल में तुमको 20,000 रुपए में दूंगा, एमआरपी उसकी ज्यादा है बट तुमको 20,000 रुपए में दूंगा। तुम बोले कि हम 3 पीस लेने वाले, हमको 3 पीस लेना है, तो नेचुरली फिर वो बोलता कि ठीक है बल्क क्वांटिटी ले रहे तो एडिशनल डिस्काउंट देता तुमको। तो वो जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है फॉर बल्क क्वांटिटी परचेस, दैट डिस्काउंट इज रेफर्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। इट इज कस्टमरी डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सेलर टू द बायर फॉर बल्क क्वांटिटीज परचेस्ड। बल्क में जब परचेस करते तो वो डिस्काउंट नॉर्मली ऑफर किया जाता है, उसको बोलते ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वैसा नहीं, कैश डिस्काउंट इज फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश या अर्ली पेमेंट ऑफ कैश। जैसे ये लिटमस समझा रही थी अभी, बोल तो साइंस समझा रही थी कि भाई ड्यू डेट के पहले अगर पेमेंट कर रहे हैं, ड्यू डेट अभी 15 दिन बाद है, 15 दिन पहले मैं पेमेंट कर रहा हूं आपको, जबकि ड्यू डेट 15 दिन बाद है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि तुमने मेरे को कुछ डिस्काउंट देना चाहिए। 15 दिन पहले पेमेंट कर रहा हूं मैं। सो फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज
कैश डिस्काउंट, वो होता है कैश डिस्काउंट। एंड जो कस्टमरी बल्क क्वांटिटी के लिए दिया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कॉमर्स वालों, आपको तो ये मालूम रहना रहना ही चाहिए, नहीं तो खिड़की तुरंत। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर अकाउंटेड सेपरेटली, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू डायरेक्टली। कोई चीज अगर 100 रुपए में तुम खरीदने वाले थे लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 10% मिल गया तो 90 में खरीदी, तो तुम रिकॉर्ड करते हो 100 रिकॉर्ड करके 10 का डिस्काउंट नहीं दिखाते, तुम रिकॉर्ड करते वक्त ही 90 में दिखाते उसको। सो ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी अकाउंटेड सेपरेटली, इट इज ऑटोमेटिकली, इट इज डायरेक्टली रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइस। जो प्राइस है उसी में से तुम उसको लिस्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। एज अगेंस्ट दैट व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? कैश डिस्काउंट जो अर्ली पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी तुम पेमेंट कर रहे हो उसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट है। एंड अकाउंटिंग कैश डिस्काउंट का छोटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डिस्काउंट आता है दैट इज नेवर ट्रेड डिस्काउंट, इट इज ऑलवेज कैश डिस्काउंट। सो डिस्काउंट ये दो तरीके के होते हैं, लिखो। नेक्स्ट लाइन लिखो, ट्रेड डिस्काउंट इज, trade discount is a customary discount, a customary discount offered by seller to the buyer or bulk quantity purchased, for bulk quantity purchased. Full stop. It is directly reduced, it is directly reduced from the transaction value, from the transaction value and is never accounted separately in books of accounts. Never accounted separately in books of accounts. लिखा? Next line. Cash discount is discount offered by the payee, P-A-Y-E-E, by the payee, to the payer, P-A-Y-E-R, to the payer for early, oblique prompt payment of cash, for early oblique prompt payment of cash.
इट इज अकाउंटेड, फुल स्टॉप देके लिखो, इट इज अकाउंटेड सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इन द बुक्स ऑफ पेई, उसी में कंटिन्यू करो फुल स्टॉप देके. इन द बुक्स ऑफ पेई it is accounted as discount allowed. It is accounted as discount allowed and in the books of payer it is accounted as discount earned, या रिसीव्ड बोलो, जो भी लिखो आप, डिस्काउंट earned. अगेन वही मेरा फेवरेट सेंटेंस मैं रिपीट करूंगा बेटा, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है. वो तो बहुत बड़ी बात मैंने आज तुमको सिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तुमको भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो. मैंने तुमको पेमेंट देना है, आई एम सपोज टू पे यू लेट्स से 10,000 रुपीज. सो आई विल बी पेयर एंड यू विल बी पेई. मैंने आपको पैसा देना है, तो मैं पे करने वाला हूं तो मैं पेयर हूं, और आपको पैसा देने वाला हूं तो आप पेई हो. कितने रुपए देने मैंने आपको? 10,000 रुपए देने हैं. अब मैं क्या कर रहा हूं, एक महीने पहले तुमको पेमेंट दे रहा हूं, 1 मंथ इन एडवांस प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा हूं मैं. तो तुमने बोला कि ठीक है सर 100 रुपए डिस्काउंट देते हैं हम आपको, 9,900 रुपए दो. सो आई विल बी पेइंग यू 9,900. बट देने कितने थे? 10,000. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आपके बुक्स में मेरे से 10,000 आने दिख रहे, मेरे बुक्स में मैंने आपको 10,000 देने दिख रहे. अब कितने में सेटल कर रहे हैं हम ये? 9,900 में. तो 100 रुपए अकाउंट फॉर करना पड़ेगा ना वो डिस्काउंट. वो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट. अब मेरे को बोलो आप के लिए ये डिस्काउंट क्या है? अलाउड है, बिकॉज यू आर अलाउिंग मी द डिस्काउंट. सो फॉर यू इट इज डिस्काउंट अलाउड. और आपके लिए डिस्काउंट अलाउड क्या रहेगा? एक्सपेंस रहेगा. लॉस बोलने के बजाय इट विल बी एक्सपेंस. अब मेरे को ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या रहेगा? पेयर के लिए डिस्काउंट अर्नड और डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड इट विल बी इनकम फॉर मी. समझ में आ रहा है? सो फॉर पेयर ही इज पेइंग, सो इट इज डिस्काउंट अर्नड. फॉर पेई दे आर अलाउिंग द डिस्काउंट, सो इट इज डिस्काउंट अलाउड. जमते जमते. तो विच डिस्काउंट वी अकाउंट फॉर इन द बुक्स? कैश डिस्काउंट. ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स आते हैं एग्जाम में अपने फाउंडेशन के, ट्रू एंड फॉल्स, एंड यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स विथ लॉजिकल रीजनिंग. सपोज बुक्स में आया that trade discount is accounted in the books of accounts. It is a false statement because trade discount is straight away reduced from transaction value and it is never accounted in the books. ये straight away transaction value में से कम कर देते हैं, उसका accounting हम करते ही नहीं है. क्यों? तो वैल्यू कम कर दी ट्रांजेक्शन की, तो फिर अलग से अकाउंटिंग करने की जरूरत क्या है? 100 रुपए की चीज अगर मैंने 90 रुपए में खरीदी है, तो मैं रिकॉर्ड ही 90 रुपए में कर रहा हूं, तो 10 रुपए रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है ना डिस्काउंट. हाँ, लेकिन मैंने आपको 100 रुपए देने थे और मैं 90 रुपए दे रहा हूं, तो मेरे को 10 रुपए अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, बचा हुआ अमाउंट डिस्काउंट बोल के. So that is the difference between trade discount and cash discount. क्वेश्चन आ रहा है जिसकी क्यों सीख रही है अपन. तो जो 3 कॉलम कैश बुक अब सीखने जा रहे हैं अपन इसके बाद, वो 3 कॉलम कैश बुक में थर्ड वाला कॉलम जो है अमाउंट का, पहले 2 तो कैश एंड बैंक है वो समझ में आ गया. थर्ड वाला कॉलम जो ऐड होता है अमाउंट का, वो होता है डिस्काउंट का. और वो जो डिस्काउंट है, विच डिस्काउंट इट इज? कैश डिस्काउंट. सो जो 3 कॉलम कैश बुक है उसमें जो डिस्काउंट आएगा दैट विल बी कैश डिस्काउंट एंड नॉट दी ट्रेड डिस्काउंट. लिखो हेडिंग 3 कॉलम कैश बुक. 3 और मल्टी कॉलम कैश बुक बोलते हैं उसको.
3 multi column cash book. Features. Number 1, it has 3 amount columns on each side to record cash and bank transactions along with a separate column to record cash discount ब्रैकेट में लिखो if any bracket closed separately तो 3 अमाउंट कॉलम है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड होंगे ही, उसके लिए तो अलग अलग कॉलम है ही, और एक कॉलम ऐड हो गया डिस्काउंट का। वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट है तो ही आएगा ऑब्वियसली उस कॉलम में, डिस्काउंट ही नहीं है ट्रांजेक्शन में तो काय को रिकॉर्ड करेंगे, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा इफ एनी। तो एक जो एडिशनल कॉलम आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? डिस्काउंट। अभी ना मैं आगे फॉर्मेट बना के दूंगा, तुमको समझाऊंगा, लेकिन तुम खुद थोड़ा लॉजिक लगाओ, मेरे को आंसर दो। दो साइड से तुम्हारे पास कैश बुक के, लेफ्ट हैंड साइड इज रिसीट साइड, राइट हैंड साइड इज पेमेंट साइड। बेटा रिसीट साइड का जो डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट का कॉलम रिसीट साइड का, वो कौन सा रहेगा? डिस्काउंट अलाउड रहेगा या डिस्काउंट अर्न रहेगा? आप देखो, रट्टा नहीं मारना है अपने को, बहुत सिंपल लॉजिक है। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट अर्न ये कैसे डिफाइन करें? रिसीट साइड में बोलते पैसा आया, पैसा अगर आया तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे कि डिस्काउंट अर्न करेंगे? अर्न करेंगे। अगर पैसा आया तो हम डिस्काउंट देंगे कि लेंगे? देंगे ना रे। मैंने तुमको 9,900 रुपए दिए ना, तो तुम्हारे लिए रिसीट है ना वो। तो जब तुमको पैसा मिलता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट मिलता है, तो तुम डिस्काउंट अलाउ करते कि अर्न करते? अलाउ करते। तो रिसीट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम आएगा वो क्या रहेगा? डिस्काउंट अलाउड रहेगा कंपल्सरीली। पेमेंट साइड में आने वाला डिस्काउंट अर्नड। क्यों? तो जब हम पे करते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है ना, प्रॉम्प्ट पेमेंट किए तो डिस्काउंट कॉलम कौन सा है? ये रट्टा मत मारो। रिसीट के साथ में हमेशा डिस्काउंट अलाउ ही होने वाला है, पेमेंट के साथ में हमेशा डिस्काउंट अर्न ही होने वाला है। बेटा अपने को मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, जो मैंने पहले लेक्चर में परसों के दिन बात की थी। मैकेनिकली नहीं सीखना है, डेबिट बोल तो डिस्काउंट अलाउड, डेबिट बोल तो डिस्काउंट अलाउड, बिल्कुल नहीं। रट्टा मत मारो। क्या है ना, इतना बड़ा वास्ट पोर्शन है ना, रट्टा नहीं मार पाओगे तुम। अकेले अकाउंट स्केच 15 टॉपिक है, वो भी 15 में चुप वो पार्टनरशिप को एक दिखाया इसलिए। अकेले अकाउंट स्केच 20 टॉपिक है वैसे, बाकी मैथ्स तो जिंदाबाद है, इको है, लॉ है। तो रट्टा कितना मारोगे ना, उसको लिमिट है, रट्टा नहीं मार सकते। लॉजिक से जाओगे तो सब कुछ जम जाएगा। तो रिसीट साइड में आने वाला डिस्काउंट अलाउड है, पेमेंट साइड में आने वाला डिस्काउंट अर्नड है। जबता है। नंबर 2, the discount columns
appearing on debit and credit side, appearing on debit and credit side will be discount allowed, will be discount allowed and discount earned column and discount earned column respectively. Respectively. लिखा? सीरियल नंबर 3. Periodically the cash and bank balances are balanced. आपने क्या लिखा? कैश एंड बैंक? नहीं, कैश एंड बैंक कॉलम्स, कैश एंड बैंक कॉलम्स are balanced and their closing balances are ascertained, and their closing balances are ascertained. Full stop. Serial number 4. However, discount columns are never balanced but are totaled on both the sides. Are totaled on both the sides. Full stop. Serial number 5. The total of discount allowed column is directly
transferred to is directly transferred to the debit side of debit side of discount allowed account maintained in ledger. Serial number. Next, sixth, the total of discount earned column is directly transferred to the credit side of discount earned account maintained in ledger. Maintained in ledger. Full stop. Last point. The format of 3 oblique multi-column cash book. The format of 3 oblique multi-column cash book is as under. बनाओ बेटा, अमाउंट के 3 कॉलम लेने हैं. LF कॉलम नहीं भी बनाया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. जगह क्या कंस्ट्रेंट है तो बना सकते हो तो बना दो, बट नहीं भी बनाया तो ठीक है. Date, receipts.
कैश बैंक एंड रिसीट साइड का डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट अलाउड। डेट रिसीट्स बैंक कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड। डेट पेमेंट्स कैश बैंक डिस्काउंट अर्न्ड। बनाया फॉर्मेट? अब देखो सब लोग क्या क्या होगा। ओपनिंग बैलेंस जहां तक ओपनिंग बैलेंस की बात है, कैश में तो पॉजिटिव रहने वाला है, बैंक में निगेटिव भी हो सकता है, डिस्काउंट में कभी बैलेंस नहीं रहता बेटा। बाय ओपनिंग बैलेंस बैंक कॉलम में से कैश में डैश, बैंक में ओपनिंग निगेटिव बैलेंस आ सकता है। टू कैश रिसीट्स जितना रिसीट हुआ वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे ना। अगर डिस्काउंट अलाउ किया है तो जितना डिस्काउंट अलाउ हुआ वो डिस्काउंट अलाउड कॉलम में जाएगा। समझो तुमको 9,900 रुपए मिले तो तुम कैश कॉलम में 9,900 लिखोगे, 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया वो डिस्काउंट के कॉलम में लिखोगे। यही सेम फंडा बैंक या चेक रिसीट्स के लिए भी। टू बैंक ऑब्लिक चेक रिसीट्स, बैंक का चेक का रिसीट है तो बैंक कॉलम में जाएगा और जितना डिस्काउंट अलाउ किया है वो डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड कॉलम में आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर डिस्काउंट अलाउ किया है तो, नहीं है डिस्काउंट तो नहीं आएगा। बाय कैश पेमेंट्स जो भी पेमेंट तुमने कैश में किया है वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करो, और वो पेमेंट करते वक्त जो डिस्काउंट हमको मिला अगर मिला है तो वो डिस्काउंट अर्न कॉलम में आएगा। सिमिलर वे बाय बैंक ऑब्लिक चेक पेमेंट्स, तो जितना पेमेंट बैंक से गया है चेक से गया है वो बैंक कॉलम में, और जितना डिस्काउंट हमने अर्न किया वो डिस्काउंट कॉलम में। अब जब ये कैश बुक क्लोज होगा तो क्या करना है? तो कैश एंड बैंक तो नॉर्मल तरीके से क्लोज करेंगे अपन, कैश एंड बैंक कॉलम्स। कैश एंड बैंक कॉलम्स क्लोज करके बैलेंसिंग होगा और क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे। जैसे कि आज 2-3 बार डिस्कस हो गया, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं कि कैश में हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही रहेगा। सो बाय क्लोजिंग बैलेंस एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर इन कैश कॉलम। इवन बैंक में भी वही होगा।
डिस्काउंट कॉलम में डैश दो बेटा, डिस्काउंट कॉलम कभी भी बैलेंस नहीं होते, वी नेवर बैलेंस डिस्काउंट कॉलम्स। क्यों? तो दोनों डिस्काउंट अलग अलग है, बैलेंस कैसे करेंगे? डेबिट का डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट का डिस्काउंट डिस्काउंट अर्नड है, उसको नेट आउट कैसे करेंगे? बैंक में निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, इसलिए रिसीट साइड में, डेबिट साइड में टू क्लोजिंग बैलेंस। कैश में तो नहीं आ सकता, बैंक में आ सकता है। डिस्काउंट में डैश। अब ये डिस्काउंट कॉलम्स का क्या करें? बैलेंस तो नहीं कर रहे अपन, क्लोजिंग बैलेंस तो ढूंढ नहीं रहे उसमें, तो मैंने जो लिखा के दिया वो पॉइंट पढ़ो। डिस्काउंट कॉलम्स आर नेवर बैलेंस्ड बट आर टोटल्ड ऑन ईच साइड, बोथ साइड्स। दोनों साइड का अपना अपना टोटल ले लो, जो भी रहेगा वो। डेबिट साइड का टोटल जो भी है वो डेबिट साइड में लिख दो, क्रेडिट साइड का जो भी टोटल रहेगा वो क्रेडिट साइड में लिख दो। तो नेट आउट करके बैलेंस नहीं ढूंढेंगे हम डिस्काउंट कॉलम का। अब डेबिट का जो टोटल है, वॉट एवर द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज, मैंने लिखा के दिया कि उसका क्या होने वाला है, वॉट इट इज गोइंग टू बी डन। क्या करेंगे इसका टोटल का? इट इज ट्रांसफर्ड directly to the debit side of discount allowed account maintained in ledger। तो डेबिट का जो टोटल है वो सीधा सीधा डायरेक्टली डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नाम का लेजर रहेगा, उस लेजर के डेबिट में ले लोगे आप। समझते हैं? झेप रहा है क्या? अब मेरे को बताओ, सिमिलर वे ये जो क्रेडिट का टोटल है वो क्या करेंगे? It will be transferred this transfer directly to the credit side of discount earned account maintained in ledger। समझाइए? तो डिस्काउंट कॉलम्स का कभी भी बैलेंसिंग नहीं होता, दोज आर टोटल्ड ऑन ईच साइड। दोनों साइड पे टोटल ले लो और टोटल डायरेक्टली लेजर में हम ट्रांसफर करेंगे। आज के लेक्चर का टाइम खत्म हो गया बेटा, इसके रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, बट दैट दोस पॉइंट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हमने सीखा सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, मल्टी कॉलम कैश बुक। सुनने के लिए बहुत आसान लगते हैं, सिखाने को 2 घंटे लग गए, है ना? यस, एनी प्रॉब्लम? दिमाग में गया ये जो कुछ बताया वो? चलो, सी यू नेक्स्ट लेक्चर गाइस, बाय बाय, थैंक यू।